Good morning, student. Now, objectives of accounting. First, permanent record. In accounting, transactions and events are recorded in written form. This record are kept either in the book of account or record in computer on permanent basis. हम अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो हम रिटर्न फॉर्म में करते हैं, आइदर वो हम बुक में या कंप्यूटर में, और वो हमारा परमानेंट बेसिस पर रिकॉर्ड होता है. Second, to know the effect of each transaction. Each transaction has its effect on overall profitability or economic condition of a business. Thus, accounting help in obtaining this information. हमें सेकंड ये है कि हमें हर ट्रांजेक्शन से पता चलता है कि हमारा बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि क्या, हमें इकोनॉमिक कंडीशंस पता चलता है. थर्ड, टू नो influential factors. The information of factors affecting profit or loss as well as economic condition of the business can be obtained by preparing account. These objectives play vital role in the preparation of account. हम जब भी accounting information हम accountings prepare करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कौन से factors है जो हमें profit and loss में affect कर रहे हैं. To determine tax liability. Generally, the tax payment liability is determined on the basis of prepared account. The burden of tax is determined on the basis of income of a payer. Therefore, the objective is to prepare account is to determine tax liability. हमें डिटरमाइन करता है कि हमारे टैक्स कितनी है. हम जब अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा कितना टैक्स है, मतलब कितना इनकम है, उसमें हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा. फोर्थ, to know quantum size of payables. In business, in place of cash transaction, credit transactions are also made. Example, purchase of raw material on credit. However, this payment is to be paid in future till the known payment of this transaction is treated as liability. At the end of the year, what is the quantums of liability can be ascertained from account. हमें ये पता चलता है कि हमारे कितने पेएबल्स है. अब हमारे बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन कैश नहीं होता है, कुछ कुछ हम क्रेडिट में भी करते हैं. क्रेडिट का मतलब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उधार में, जिसका पेमेंट हम फ्यूचर्स में करेंगे. तो ये हमारा जो नॉन पेमेंट है, ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है. और ये हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में कितनी लाइबिलिटी है, मतलब कितना कर्जा है. लाइबिलिटी का मतलब कर्जा होता है, और हमें पता चलता है कि हमें कितने लोगों को पैसे पे करना है. 6. To know the quantums of receivable. Like credit purchase, goods are sold on credit to customer. This amount is receivable in futures until the non-receipt of this amount it is shown in the book of receivable. This information obtained from account. हमें हमारे कितने रिसीवेबल्स है, जैसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं वैसे ही हम क्रेडिट में सेल भी करते हैं, और हमें जो भी पैसे हैं वो फ्यूचर में मिलने वाले. तो हमें ये पता चलता है अकाउंट से कि हमें कितने हमारे कितने रिसीवेबल्स है जो हमें फ्यूचर में हमें पैसे वहाँ से मिलने वाले हैं. 7. To measure profitability of business. The significant objective of account is to measure earned profit or incur loss for respective period. The measurement of profitability is made available by accounting. हमें ये पता चलता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने से कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, हमें आइडिया लगता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है. 8. To know economic status of business. At the end of year, what is the size of liability, is asset and receivables of the business can be seen from the account under accounting system. When asset and receivables are more than liability, it can be said that it is good economic condition. So economic condition, which is known as the solvency, can be known फ्रॉम अकाउंट. हम जब अकाउंट लिखते हैं तो हमारे एंड ऑफ ईयर, हमारे साल के आखिरी महीने में हमें ये पता चलता है कि हमारे कितनी लाइबिलिटी है, कितना असेट है. लाइबिलिटी का मतलब कर्जा, असेट का मतलब हमारी जितनी प्रॉपर्टी से वो हमारा. और हमें ये पता चलता है कि हमारे अकाउंट्स, हमारा जो बिज़नेस है उसकी कंडीशन क्या है, गुड है कि बैड, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. तो वो भी हमें कैसे पता चलता है कि हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं. 9. To detect and avoid error and fraud. By investigating prepare account, financial mistake or crimes can be traced out.
Accounting help to prevent such kind of undesirable event. Accounting maintain indirect control to avoid error and फ्रॉड. हमें अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी कौन से मिस्टेक्स हो रही है. हम जब उसको लिखते हैं तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे क्या मिस्टेक है, हमने कहाँ पे गलती की है, और उस मिस्टेक को हम अवॉइड कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये सारे थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि हमें अकाउंट्स बनने से हमारे क्या क्या मेन हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें अकाउंट्स बनाना चाहिए. नाउ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. एडवांटेज मतलब कि हमारा एडवांटेज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हमें बेनिफिट्स क्या है अकाउंट बनाने का, हमें क्या फ़ायदा होने वाला है वो चीज़. फर्स्ट पहले है कि अकाउंटिंग इज़ अ सोशल साइंस. दिस साइंस इज़ यूज इन द एंटायर वर्ल्ड. दिस यूटिलिटी डिस्क्लोज इट एडवांटेज आर एस अंडर. हमारा अकाउंटिंग है वो सोशल साइंस है जिसमें साइंस वो पूरे एंटायर वर्ल्ड में यूज़ होता है, हर जगह पे अकाउंट यूज़ होता है, हर कंट्री में यूज़ होता है. अब उसके एडवांटेज क्या है. पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Accounting information is prepared by any owner of any business. If this information is readily available, it can be used by the owner as and when it is needed. Example, an owner want to obtain a loan from bank, he can prepare accounting information from his economic status and कैन ऑब्टेन द लोन. हमें सबसे पहले कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल होता है, हमने उसको रिकॉर्ड किया है, हमने उसको लिखा है, तो जब भी हमें अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया है कि एक ऑनर है, उसको बैंक से लोन चाहिए. अब जब भी उसे लोन चाहिए तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसने बनाया होगा, उससे उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, उसका बिजनेस का स्टेटस क्या है वो पता चलेगा और आराम से उससे बैंक से लोन मिल जाएगा. Second, to know profitability. During the specific accounting period, how much profit is earned or how much profit is earned by incurred by business. This information is provided by accounting. The information is certain from profit and loss. अकाउंटिंग हम जब बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है बिजनेस में. ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट से पता चलता है. Third, to know financial status. At the end of the period, what is the size of liability for the business can be ascertained. If the size of liability of the business is small, it indicates weak economic condition, and if the size of liability of business is less, it indicates good economic condition. This economic status can be ascertained through balance sheet. हमें अकाउंटिंग से हमारा फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है. अगर हमारी लाइबिलिटी, हमारा कर्जा ज़्यादा है तो हम ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, और अगर हमारी लाइबिलिटी मतलब हमारा कर्जा, हमारा लॉसेस वो कम है और हमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन गुड है, जो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है. टैक्स प्लानिंग. Tax on economic has to be paid by every business unit in different form. The determinant of tax size is based on the quantum of transaction of business. Keeping in the mind quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period is certain from the account. From this information, planning for tax payable during the period can be made. हमें टैक्स प्लानिंग में पता चलता है कि हमें इस साल कितना टैक्स भरना है, हमारी कितनी इनकम हो रही है, कितने हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कितने हमारे रिसीवेबल्स है. उन सब से हमें ये पता चलता है कि हमारा टैक्स कितना है और हमें ये कितना टैक्स इस बार पे करना है, वो हम उसका प्लान पहले से पूरा बना सकते हैं. वो हमें अकाउंट से पता चलता है. वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. In practice, sometimes an owner sells his own business to another person. Under this circumstance, what should be the selling price of business? Accounting is helpful to determine the selling price. What is the profitability of business? What is the economic condition? This sort of information is provided by accounting. Therefore, it is manner accounting assess in business valuation. जब हमें बिजनेस की वैल्यू निकालना है, वैल्यूएशन निकालना है कि बिजनेस की इस वक्त कीमत कितनी है. अगर किसी ऑनर को अपना बिजनेस किसी और को सेल करना है तो उसकी कितनी कीमत है, उसे कितने में बेचना चाहिए, तो उसमें भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है कि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, हमारे बिजनेस के अंदर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी है. उस सब हमें इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट जो हमने बनाया होगा उससे मिलेगा और उसके हिसाब से हम अपनी वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल सकते हैं. डिसीजंस मेकिंग. Different form of business like sole proprietorship,
Partnership firms and company prepare their own account. Especially accounts of companies are used several stakeholders like creditors, stakeholder, investor for the investment decisions. Accounting play वाइटर रोल इन डिसीजंस मेकिंग. डिसीजंस मेकिंग में भी हमारा अकाउंट हेल्प करता है. बहुत सारे हमारे पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोपर्टाइनर है, वो अपना खुद का अकाउंट्स बनाते हैं. और बहुत सारे जो स्टेक होल्डर है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे क्रेडिटर है, जिनको हमारे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो हमारे अकाउंटिंग देखते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है कि लॉस है. उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करने में हमें हेल्प करता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. As an evidence, the information of account is based on accounting rules and principles. Thus, account prepared in such manner are considered reliable. Due to this information of reliability, at the time of any dispute, account are sold as evidence. Example: in the case of any dispute in the context of account between partner of a partnership firm, account become evidence to bring the solution for the purpose of justice. हमारा जो अकाउंट है वो हमारे लिए एविडेंस है. मतलब हमारा जो भी अकाउंट है वो हमने पूरा रूल्स एंड प्रिंसिपल के साथ रिकॉर्ड्स किया है, वो हमारे पास है, रिलायबल से, मतलब हमारे पास उसकी पूरे रिसोर्सेस है. जब भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कभी के कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया जहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, कैसे बिजनेस रन आउट किया, तो वहाँ पे उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, जो अकाउंट हमने रिकॉर्ड्स किया, उसको एविडेंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. Comparison with the past operation. The rules and the principle of account do not change. Due to these features, present performance of the profitability or economic condition can be compared with the past, and information from the development of business can be obtained. If development has taken place or it not as per as the expectations, planning can be undertaken to achieve in future. Apart from this, account can be compared with the account of competitor. हम अकाउंट्स में हमारा जो सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल वो चेंज नहीं होता. हमने जो पहले रूल्स एंड प्रिंसिपल यूज़ किए होंगे वो सेम हम अभी भी यूज़ करके अपना बिजनेस कर रहे हैं. तो हम अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के साथ कि पहले हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, अभी कितना प्रॉफिट हुआ है. हमारे अकाउंट्स में हम उस हिसाब से हमारा प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें आगे कैसे बिजनेस करना, फ्यूचर में हमें क्या अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे. वो सारे चीज़ को हम आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और हम कंपेयर कर सकते हैं. Moral control. Accounts are in written form. They are used as evidence. Thus, the chance of fraud by the employees are reduced. Account as a keep moral control over the employees. अकाउंट वो हमारे में रिटर्न फॉर्म में होता है, इसके लिए हमारे पास वो एक एविडेंस होता है, इसलिए वो एक तरह से मॉरल कंट्रोल करता है. खुद ही एम्प्लॉयज़ अपने आप कोई चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कुछ भी मिस्टेक की तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा और हमारा फ्रॉड पकड़ा जाएगा. डेट्स वाई वो हमारे अकाउंट्स मॉरल कंट्रोल मीन्स कंट्रोल रहता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ फ्रॉड या फिर चीटिंग नहीं करेगा. 10. Corrective measure. In practice, it is so happened that business suffered due to some past decisions made by the owner or the management of the business. The effect of these decisions are reflected in the business. To avoid the reoccurrence of such mistake, corrective measure and necessary can be generally taken. ये हमें यहाँ पे क्या है कि करेक्टिव मेजर, हमारा अकाउंट से वो हमारे लिए क्या है कि हमने पूरा रिकॉर्ड करके रखा है, हमें पास पहले से पता है कि हमने पहले क्या किया था और अब क्या करने वाले. कभी ऐसा होगा कि कोई ऑनर ने पहले जो डिसीजंस लिया था, सब कुछ उनने सोचा था, वो मैनेजमेंट ने या फिर वो मे बी अकाउंट में उसका रिफ्लेक्ट अलग हुआ था. तो जब भी हम दूसरी बार वो फैसला लेंगे तो हम पहले के सारे स्टेप को मेज़र करेंगे और उसके बाद न्यू स्टेप में हम सारे करेक्टिव मेज़र करने के बाद मैनेजमेंट न्यू फैसला लेगी, जिससे हमारा मोस्टली जो भी हमारा मेज़र होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स होगा वो इजीली हम अचीव कर पाएंगे. तो ये जो हमने अभी देखा वो हमारे सारे इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट है कि हमारे अकाउंट्स बनाने के ये सारे बेनिफिट्स थे कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं. नाउ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इन अकाउंटिंग those transactions are recorded, the value of which can be measured in the terms of money. Example: purchase, sale of materials, purchase, sale of asset, etc. The quality like honesty, loyalty, commitment of employees working in the organizations play the significant role for the development of business.
दिस एक्सपेक्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग। यहाँ पे कहा गया कि हमारा अकाउंट में पहला लिमिटेशन है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। हमारे अकाउंट में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि परचेज किया है, सेल्स किया है, एक्सेट्रा। लेकिन जो चीज़ जिसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि लॉयल्टी, किसी की ईमानदारी है, हॉनेस्टी है, कमिटमेंट है एम्प्लॉय, वो भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेकेंड है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंटिंग एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल। Example, an asset was purchased before the 5 year of rupees 50,000. Its replacement is required to be done. Then it is the case the more than value rupees 50,000 has been paid to acquire some type of asset due to the inflation. Accounting assume that the value of money remains stable. Practically, it is not possible. A stable value of money consumptions can be treated as the limitation of accounting. सेकेंड है कि स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंट में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा मनी जो भी है वो स्टेबल है। जैसे कि हमने कोई असेट परचेज़ किया, जैसे कि हमने कोई लैंड परचेज़ किया था 5 साल पहले 50,000 का। अब हमें पता है कि बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि इन्फ्लेक्शन बहुत तेज़ी आ जाती है और उसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन हम अकाउंटिंग में यही कंसिडर करते हैं कि अभी भी उस लैंड की कीमत या फिर वो असेट की कीमत 50,000 है, जो रियल में पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड है हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स इवेंट। In accounting, historical transactions or events are recorded. No corrections are allowed in transaction for any mistake, but still historical transaction and event are useful to take future decisions. हमारे जो भी हमारा अकाउंट है, हमारे पास हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है, मतलब हमने पहले क्या किया था वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है। उसमें हमने कोई भी करेक्शंस या फिर कोई भी हम नया कुछ चीज़ एंट्री हम नहीं रिकॉर्ड्स करते, लेकिन उसके बाद भी हमने जो हिस्ट्री में मिस्टेक की हो वो सेम मिस्टेक हमारी रिपीट हो सकता है, क्योंकि हमने उसके अंदर कोई भी करेक्शन या फिर कोई भी हमने जो मेजर करेक्टिव स्टेप लिए वो हम रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं। Avoid of market value. The value of asset keep on changing. The market price keep on changing. In accounting, market values ignore only the actual cost based treatment as given. हमारा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि हमारा अकाउंट्स में हमारा मार्केट वैल्यू को हम अवॉइड करते हैं। हमारी जो भी वैल्यू ऑफ असेट होती है, जो भी कीमत होती है, वो हमेशा बदलती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन मार्केट में हमेशा कीमत चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में हमेशा हम वो कीमत देते हैं जो उसकी एक्चुअल, जब हमने उसको परचेज़ किया था जब उसकी जो कीमत होती है हम वही उसको कंसिडर करते हैं। जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। यूज़ ऑफ एस्टिमेट इन अकाउंटिंग items like bad debt reserve is determined on estimation. If estimation are mistake oriented, it will be reflected in the account, but this kind of estimate are done on the basis of past experience and logic, so the possibility of mistake remain minimum. यहाँ पे हमारा क्या यूज़ ऑफ एस्टिमेट, हमारा अकाउंट में हम बैड डेप रिजर्व का मतलब होता है कि हमारे को लगता है कि कुछ पैसे हमारे फ्यूचर में डूब जाएंगे, जैसे हमने किसी को उधार में कुछ बेचा है और वो हमें नहीं मिलने वाला है, तो वो हमारा बैड डेप होता है। इसके लिए हम अकाउंट में हमेशा पैसे कुछ बैड डेप रिजर्व, मतलब हम हमारे से रिजर्व में कुछ पैसे रखते हैं, वो हम एस्टिमेट करते, पूरा हम अंदाज़ा लगाते, सपोज करते हैं। अगर वो हमारा एस्टिमेट ही रॉन्ग निकला, मिस्टेक निकला, तो हमारा जो भी अकाउंट में उसका रिफ्लेक्ट पूरा रॉन्ग पड़ेगा। और हम जो भी एस्टिमेट करते हैं वो हमारा पास एक्सपीरियंस से करते हैं। अगर पास एक्सपीरियंस में ही हमारा मिस्टेक है तो हमारा सेम मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होगा। लास्ट, डुअल स्टैंडर्ड। देयर आर द टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज नॉन एज इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन द करंट प्राइस, while the item of balance sheet are disclosed at the old price, historical price. The kind of disparity prevail. अब यहाँ पे क्या है कि डुअल स्टैंडर्ड, हमारे अकाउंट में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंट होता है। एक पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके अंदर हम जो करंट प्राइस चल रही है आइटम की वो रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड होता है बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम
हमारे लायबिलिटी और असेट रिकॉर्ड करते हैं, और वो हमारी ओल्ड प्राइस मतलब हिस्ट्री में जो पहले कीमत थी हमारी ओल्ड टाइम में, वो प्राइस हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या आ सकते हैं कि दोनों के बीच में डिसएबिलिटी मतलब डिफरेंस आ सकते हैं। ये सारे हमारे क्या है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे अकाउंट्स के अंदर होते हैं, कि ये सारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग है। नाउ थैंक यू।